इस समय हमारी टीम ठीक स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल मुलबेक में हमारी टीम मौजूद। Okay, so now, like every day, before begin with the main class, a little bit about some important other life where we need to learn how to speak in English. Okay, so during the past 1 week, we have learned a lot about it, how to speak. Ngi mi astanjin pas kitin le nga class 7 tiang sila. Ni mi astanjin somozerin le yang nga class 8 yang ile nga thas gang 9 le. Ngi ambition in life nga chanma song se pilot gis ngi dakle. Nga engineer gis ngi da. आप जो है चाहे फेल हो गया हो स्कूल में, कॉलेज में फेल हो गया हो, या आपके घर वाले, आपके सोसाइटी में कोई भी आप लोगों को अगर डिस्करेज करता है, अब ये नहीं कर सकता, अब वो नहीं कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नूरबू साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फिर से एक बार ज्वाइन होने के लिए। क्योंकि हमें मालूम है इस साल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सारे सीबीएसई में कन्वर्ट हुए हैं। इसके बाद हमने क्या पाया इस गांव में, ख़ासकर इस साल कि क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चे भी एंगेज हो गए। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव द वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट। फिर से एक बार सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को हम वेलकम करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल मुलबेक में हमारी टीम मौजूद है। Sivang Norbu, Principal Director of Springdale's Public School, Mulbek Kargil initiated a 1-month winter coaching classes for students of classes 6 to 10th of both government and private schools of Shargole block in a school campus. The aim of the coaching classes is to keep children engaged during long winter holidays and also teach them basic mathematics, English language, mental ability, general knowledge, English speaking practice, confidence building sessions and career guidance. Expert guest speakers belonging to different backgrounds are also invited during the sessions to provide the children necessary guidance. The coaching classes are from 1st January 2024 to 31st January 2024 in Springdale's Public School campus. A report by Hussain Khalo. सेवांग नूरबू साहब का एक बेहतरीन इनिशिएटिव जिसमें विंटर सेशन में एक मंथ के लिए, जिसमें 6 to 10th क्लास के चाहे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हो या प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए एक इनिशिएटिव लेके एक कोचिंग सेंटर जो है मुलबेक के स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल में उन्होंने ये इनिशिएटिव ली है। इससे पहले मैं आपको कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत विजुअल्स दिखाए हमारे क्लासरूम्स के, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टूडेंट से भी मिलवाता हूँ और उनके भी राय मशवरे की। आज यानी कि अभी स्टार्टिंग में है, तकरीबन हफ्ता हो चुका है ये कोचिंग जो है शुरू करके। क्या क्या इन्होंने सीखा, क्या क्या दुर्जे साहब से, सेवांग साहब से इन्हें सीखने को मिला। Okay, so now like every day, before begin with the main class, with the main session, we will talk a little bit about some important other life related skills or information. Okay, since all these sessions in January, it is mainly focused on our improving our communication skill. Okay, mainly English, how to speak, how to write, and of course how to read. But the most important part is speaking in English, because this is something our children normally in this area or in these remote villages, our children struggle with speaking in English because we do not have a conducive environment for improving our communication skills mainly in English. Okay, Ladakhi is our mother tongue, so there is no need to have any special class because it's our mother tongue, so we can speak a very fluent and very good Ladakhi. Similarly, in Hindi also we do not struggle a lot because Hindi is little bit easier. But English is something we normally don't speak in our houses, we don't speak with our friends, we don't speak in our schools. So as we do not have that environment where we can speak English with everyone and learn how to speak. So since we do not have that kind of environment, we have to design or we have to have this kind of special coachings where we need to learn how to speak in English. Okay, so during the past 1 week, we have learned a lot about it, how to speak, and we are trying to have all the sessions, whether it's a mathematics class, whether it is English language class, whether it is general knowledge class, whether it is mental ability class or any class we are having.
we are trying to have it only in English. So from my side also, I'm trying to speak in English all the time so that you can learn from me. At the same time, we are trying to have interaction with each other so that you can also sometimes learn how to speak in English. And with the help of this modern technology, this digital board or the interactive panel, we are trying to show you some interesting videos, movies, or some other things which are available, wonderful sessions available, which we are trying to watch. And in the next 3 weeks also, we will try to watch that so that you can learn about all those topics. At the same time, you can learn how the English is spoken, how correct English or good English or better English is spoken. पहले मैं नमो के पास जाता हूँ. अपना नाम बताओगे और किस क्लास में आप हो और किस स्कूल से आप? Ngi mi astanzin pas kitin le nga class 7 yang silale. Nga ngi school mi nga lestan Springdale Public School yang nga mulbek na le. बहुत बढ़िया. मिंग पजरचा स्कूल दोना गाने. Ngi mi astanzin somozerin le yang class 8 yang ile nga thas gang na ile. अच्छा. Ngi mi nga jigmet padma inle nga 6th class yang silbale yang ni school mi nga Springdale Public School inle yang nga wakhana inle. अच्छा. Ngi mi nga jingwe ngutu win le nga sapine le nga di lamdo school da sila. Good. Ngi mi astanzin chogdan inle nga thas gang na in nga Springdale Public School la. शाबाश. Ya julengi mi pan marikzin zashan nga pachika nain. Thank you. Ya julengi mi stanzin tashin le yang nga wakhane yang nga Springdale la sila le. Ngi me siring dorjin le nga zindar shipena sila le yang nga pachika le. तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस कोचिंग में पिछले हफ्तों से ये लोग यहाँ कोचिंग ले रहे हैं इन द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल सवांग नूरबू साहब. चामचे सोले यंती कोचिंग पर स्टार्ट सो से दोना गजुक छोरे दे दी चोगा इनिशिएटिव लेन सुंगती यंती प्रिंसिपल नूरबू साहब. Di eko coaching po start cho se 1 week song le yang sarimal demol saben dugle gao dasan spe ngacha malhap payot pin ngacha odong se jale. पढ़ाई अलावा यंग स्किल्स हैं जैसे ता डेली स्पीकर क्यों से लेक्चर आता दो एक्सपोजर क्लास आया था छेंदु तो गजु चीज़ Yong en dugle malap speaker de. Yes speaker sak mangmo yonsle nga cha khoi kana mangmo riglops le yang Saturday nga cha guest speaker sak khongmat. Nga cha is jakta Saturday revision test le yang nga cha nga mangbo ikana yang suma silcha lops le. Yang do na nga ta nam na lang ma malaps kanda daksa ma mangmurik polos. Nga cha nga dona jana knowledge mental ability don English language tang lops le. Good. Tene yang tika azuko school ka milsap ka non tika mar de mo sa sarno hangwenda. Yang nga chadi ka basic sak asnan la pata met pinare nga chadi ka also basic sak khas bas la sapata. Good. शाबाश. Nga changa basic sak chungche chana si go nga charje temit pin odon yang sabs dika saris थैंक यू. तो दर्शकों मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए थे जो इसी कोचिंग में पिछले हफ्तों से जो है ये लोग कोचिंग ले रहे हैं और इनका भी जो राय मशवरे है क्या एक्सपीरियंस इन्होंने आज के इस कोचिंग सेंटर में लोग ले रहे हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. पता है में से कौन कौन कैसा है, पढ़ाई में अच्छा है, कौन स्पोर्ट्स में अच्छा है, कौन क्या है, लेकिन चिड़ियाल पवन थोड़ी पता था. वो तो एकदम आया हमारे क्लास में आया, सब लोगों से देखा, इधर देखा, फोटो खींचा, ऐसे करके फिर उसी में से बच्चों को सेलेक्ट किया और उन सभी बच्चों में से 40-45 बच्चों में से उन्होंने सेलेक्ट किया किसको, इसको मतलब पता ना था, इसको सिलेक्शन किया. अभी उस मूवी का लीडिंग एक्टर कौन है? पद्मा रिक्सिन नुरबू पाचिका. नॉर्मली लोग इस बेचारे को क्या क्या बोलते हैं, पढ़ता नहीं है, शैतानी करता है, घूमता रहता है, ये चीज का क्या होगा जिंदगी में, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये किसी और चीज में अच्छा नहीं होगा. ये जो है एक्टिंग में, कल मैं जब वो छिड़काल पाऊंगा लगे स्पेरा था उसमें, उनसे मैंने पूछा था यार क्यों आपने उसको सेलेक्ट किया है, वो तो नॉर्मली पढ़ाई में अच्छा नहीं है. उसने बोला यार सबसे कॉन्फिडेंट बच्चा वही था पूरे ग्रुप में से. जब ने उनसे बात किया, हमने सिलेक्शन किया, तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट, ही वाज सो एक्टिव.
और हमें जो लीडिंग एक्टर के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर चाहिए था सब कुछ इसके अंदर है. नाउ इमेजिन एक प्रमोशनल वीडियो बन रहा है दैट विल बी वॉच्ड बाय द होल वर्ल्ड, ओके, शॉर्ट मूवी, एंड द लीडिंग एक्टर ऑफ दैट मूवी इज मिस्टर रिक्सिन, पद्मा रिक्सिन. अब जिसको हम लोग क्या बोलते थे, बेकार लड़का है, तो कुछ नहीं हो सकता इसका क्योंकि ये पढ़ता नहीं है, शैतानी करता रहता है. अब नाउ ही हैज दैट स्किल, ही इज सो वंडरफुल. अब अगर ये इसी उसमें मेहनत करते जाएगा तो ही कैन बिकम अ वंडरफुल. Ano mo tayo ska de na program ko conclude bet gasuk che thanks bet dibutang duno ditsos coaching zere ditsos facilities enta provide bat ne Snan lami bat pinle dichik soma bingle yang achama aldemo wasel saben dugle sar la thank you sir. gasuk che shukriya bet se chawan sa ba ki ditsos initiative le ne enta ek mahne fila अलबसे खुस्टुल कोशिश बस इनसुक दिल तीन खुद नेक्स्ट ईयर 2 महीना 3 महीने फिर खुद एक्सटेंड बेट स्नल ना आचा पता में पिन की दिका कि yang basic चिल्सा पे जरे dan adi kalsa pana sarin ma demo sabenduk yang ma interesting chik basel sabenduk gaung acha sna la malop daksan cha dia basic chaung se man demo baselop. Thank you so much sir. ये gasuk che thanks che nga sata dinda saris ta soma labs te thank you joidle ningna yang sar la thank you so much le. नमो गा स्टूडेंट्स इन ना कोई फ्यूचर प्लान छिन एम्बिशन इन लाइफ छिन ये चीज आसु ये एम्बिशन Ni ambition in life nga chanma song se pilot gis ngi dakle. nga engineer gis ni dakle Nga pilot kyus ngin dakle. पुलिस गिरी पुलिस Nga army officer. अच्छा माय ड्रीम इज आर्मी आर्मी ऑफिसर. अच्छा बस तो कोशिश की थी दर्शकों स्टूडेंट्स द्वारा जो एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ से इन कुछ दिनों में यानी कि हफ्ता 10 दिन हो चुके हैं इस कोचिंग सेंटर को अपना एक्सपीरियंस जो है क्या है कुछ इन्हें यहाँ सीखने को मिल रहा है हमारे व्यूअर्स तक शेयर कर रहे थे आप बने रहे हमारे साथ. स्टार्टिंग आवर क्लास टुडेस जो मोरल जो लेसन है वो ये है कि आप जो है चाहे फेल हो गया हो स्कूल में, कॉलेज में फेल हो गया हो, या आपके घर वाले आपके सोसाइटी में कोई भी आप लोगों को अगर डिस्करेज करता है, अब ये नहीं कर सकता, अब वो नहीं कर सकता है, तो जो बाहर से होता है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू थिंक योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. कल जब हमने वो 12 फेल का मूवी देखा तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, उसमें वो जो लड़का था मनोज था, वो क्या कहता है जब उसके दोस्त उसको बोलता है यार आपके कमरे में तो इतना अंधेरा है, आप कैसे पढ़ाई करोगे, तो वो क्या कहता है, देखो मेरे दोस्त, बाहर का अंधेरा इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी.
तो दोस्तों कोशिश की थी आज हमारा टीम जो है मुल्बेक इलाका हमारी टीम पहुंची हुई स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल से तस्वीरें बराबर आप दर्शकों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। एक बेहतरीन इनिशिएटिव सेवांग नरबू साहब का विंटर कोचिंग को लेके, जिसमें शरगोल से लेके तकरीबन वाखा मुल्बेक तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास से लेके तकरीबन 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को स्किल्स डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ और बाकी जितने भी एक्सपोजर्स हमारे लेसन्स होते हैं इनको लेके एक बेहतरीन इनिशिएटिव उन्होंने लिए है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नरबू साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फिर से एक बार ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ सर, आपने एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो ले है हमारे बच्चों के लिए ली है, स्पेशली मुल्बेक इलाके की अगर हम बात करें। थोड़ा बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर थोड़ा बहुत ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फर्दर सवाल आपने। थैंक यू खालू साहब, सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए, इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए, और सभी मीडिया ग्रुप जो कारगिल में है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वाकई में डिस्ट्रिक्ट कारगिल में सभी इश्यूज़ को मीडिया के थ्रू हमारे आम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि इस विंटर कोचिंग के बारे में, तो जैसे आप लोग को हम सबको पता है, स्पेशली इस साल सर्दियों में गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली क्लास 10th, 11th और 12th के बच्चों को जो है उनके टीचर्स को छुट्टी ना देकर बच्चों को जो है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके बच्चों को जो है हम हर स्कूल में, स्पेशली सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरे लद्दाख में रखा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है इस साल जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सारे CBSE में कन्वर्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली इस साल हमारा पहला जो है बोर्ड एग्ज़ाम CBSE का होना है, तो उस वजह से ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है कि हमारे बच्चे पहली बार अगर CBSE बोर्ड फेस करेंगे तो उनको उस एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी करना। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा, UT एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और उसी तरह से ख़ासकर हमारे इस इलाके में शरगोल ब्लॉक में, ख़ासकर ये फोकर से लेकर ये वाखा तक के जो एरिया है उसमें 10th, 11th, 12th के लिए तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी तैयारियाँ हैं। और उसी के साथ साथ क्लास 3rd, 4th और 5th इन क्लासेस के लिए अगेन पिछले कई सालों से हिल काउंसिल कारगिल और वॉन बुद्धिज़्म इंडिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया वेल रिसर्च, वेल प्रिपेयर्ड जो है विंटर फ्री कोचिंग क्लासेस चलती है, जो पिछले 3 साल से चला हुआ और इस साल 4था साल है। और इस साल भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोचिंग क्लास चला रहा है। टीचर्स को जो है दिल्ली में ले जाके ट्रेनिंग देके लगभग इस पूरे इलाके के जितने भी क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो इसके बाद हमने क्या पाया इस गांव में, ख़ासकर इस साल, कि क्लास 3rd, 4th और 5th के बच्चे भी एंगेज हो गए, 10th, 11th, 12th के बच्चे भी एंगेज हो गए, लेकिन जो क्लास 6, 7, 8, 9 और न्यू 10 जो इस साल 10 में पहुँचे हैं वो सभी बच्चे जो है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर ट्यूशन और कोचिंग इन दिस एरिया वो बेचारे लगभग बेकार से हो गए थे। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा चिंता करते थे कि भाई इन बच्चों को ना ट्यूशन का कोई फैसिलिटी है ना कोई कोचिंग का है, तो क्या करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले कई दिनों से हम लोग को इस पे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। तो हमने कई लोगों से हमने डिस्कस भी किया कि स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल जो है हम लोग यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से अगर हम विंटर में इन बच्चों के लिए भी 6 to 10 का भी अगर कुछ कर पाए तो अच्छा हुआ। तो लेकिन फिर क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर कोई इधर सब प्लान बना चुके थे, तो फिर मैंने पर्सनली इनिशिएटिव लेके पेरेंट्स से बात करके उनसे मैंने ये कहा कि मैं इस साल जो है एज ए पायलट प्रोजेक्ट देखने के लिए कि किस तरह से होता है, तो मैं इस साल जो है जनवरी में खुद पर्सनल इनिशिएटिव लेके जनवरी का महीना जो है 1st से लेकर 31st तक, क्योंकि ये महीना है जहाँ पे बच्चे जो है ज़्यादातर बेकार रहते हैं। दिसंबर में स्कूल बंद होने के बाद कुछ दिन लोसार का फेस्टिवल होता है और गाँव में भी थोड़ा सा उनको टाइम भी मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा निकल जाता है, लेकिन जनवरी का महीना बिल्कुल भी बच्चे बेकार हो जाते हैं। फिर इसके बाद फरवरी, इसके बाद स्कूल खुलना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा इस साल देखने के लिए विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द पेरेंट्स क्लास 6 से लेकर 10 के बच्चों को मैं एक इनिशिएटिव लूँगा। लेकिन इस कोचिंग का स्पेशलिटी ये है, ये नॉर्मल ट्यूशन नहीं है जो हम स्कूल में जो किताबें पढ़ते हैं उसी का ट्यूशन नहीं है, या कोई जो नॉर्मल जो कोचिंग होता है कमर्शियल कोचिंग टाइप का वो नहीं है, बल्कि ये इस तरह का है क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे जो है जो स्कूल में नहीं सीख पाते हैं, जो अदरवाइज़ हमारे बुक से नहीं सीख पाते हैं, जो लाइफ स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो स्पीकिंग में हमारे बच्चे नॉर्मली पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कमज़ोर होते हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में, उसके साथ साथ जो मेंटल एबिलिटी हो गया, आपका बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं
उनके लिए हमारे बच्चों को और पेरेंट्स को गाइडेंस ना होने की वजह से, पता ना होने की वजह से हमारे बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर गाइडेंस, वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि अगर ट्यूशन कोचिंग लगाना ही है तो इस तरह का लगा जाए ताकि बच्चों को जो ये विंटर का हॉलीडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो उनकी ज़िंदगी में। तो मैं जो क्लास ले रहा हूँ, जैसे कि पूरे दिन में 3-4 घंटे का क्लास है, तो उसमें एक घंटा लगभग मैथमेटिक्स, बेसिक बिल्कुल मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा स्पेशल सब्जेक्ट भी है। स्कूल में मैं पिछले कई सालों से पढ़ाता था और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से मेरा इंग्लिश मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रास्प है। तो एक क्लास तो बिल्कुल टोटली डेडिकेटेड है बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर। तो दूसरा जो है वो इंग्लिश के ऊपर है, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग पे, क्योंकि हमारे बच्चे लिखने में भी ठीक होता है, रीडिंग का भी नॉर्मली ठीक होता है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश बोल नहीं पाते। तो उस इंग्लिश बोलने का जो झिझक होता है, जो घबराहट होता है, उसको निकालने के लिए हम लोग इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को उनको इंग्लिश बोलने देकर प्रैक्टिकली, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कोई भी लैंग्वेज आप तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ दे के कर रहे हैं। साथ के साथ जनरल नॉलेज हो गया, आपका मेंटल एबिलिटी का जो बेसिक्स होते हैं वो सारा बच्चों को बताते हैं ताकि उनको इन चीज़ों का आइडिया लगे। नॉर्मली हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि स्कूल में जो है टीचर्स को बर्डन होता है सिलेबस कंप्लीट करने का, एग्ज़ाम पास कराने का। तो ये चीज़ें स्कूल में होता भी नहीं और करते भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कम से कम विंटर के जो 2-3 महीने हमें कोशिश ये करना चाहिए इन बच्चों को इस तरह के कोचिंग दे, ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ बाकी लाइफ सॉफ्ट स्किल्स जो है सीख सके। बिल्कुल सर, नुरबू साहब आपका भी काफ़ी वाबस्ता रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से पिछले कई सालों से। क्या क्या खामियां आ रही हैं सर हमारे बच्चों में, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि टैलेंट तो हमारे बच्चों में काफ़ी, बट उभर के आने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। किन चीज़ की ज़रूरत है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि डाउन के बच्चों की तरह हमारे भी बच्चे भी शाना बशाना आगे निकलें? बिल्कुल खलू साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे बच्चों में जो है टैलेंट की और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो उनको प्रॉपर सपोर्ट की कमी है, पेरेंट्स की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो, हम सब की तरफ से। क्योंकि हमारे बच्चों को टैलेंट होने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता लगता कि कौन से एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, ख़ासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हो या उसके अलावा भी अगर लाइफ में कुछ करना हो तो वो जो है उन चीज़ों को ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, वो जो है ये कर नहीं पाते। और ज़्यादातर ख़ासकर गांव में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पेरेंट्स भी जो है ज़्यादातर, पहले तो होते ही थे, आजकल भी ज़्यादातर लोग जो है इतने एजुकेटेड नहीं हैं। हाईली क्वालिफाइड हैं बहुत से लोग, लेकिन हाईली क्वालिफाइड होना या लिटरेट होना उसका मतलब ये नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड हैं या हाईली आपको सारी चीज़ों का पता हो। उसकी कारण हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को चाहे स्कूल में भेजना हो, चाहे कोई भी किसी भी जगह भेजना हो, तो हम अंधाधुन बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं, किसी भी ट्यूशन सेंटर में डाल देते हैं, किसी भी स्कूल में डाल देते हैं। जैसे आपने कहा, ख़ासकर डाउन में, बाकी जो शहरों में जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अगर बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन भी कराना हो तो उस स्कूल के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तब जाके फिर कई स्कूलों का रिसर्च करने के बाद फिर बच्चे को उस स्कूल में डालते हैं। इवन अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी डालना हो तो पहले उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च करते हैं, उसमें क्या पढ़ाते हैं, क्या उसका क्वालिटी है, तब जाके इंस्टीट्यूट में डालते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे लद्दाख में और करगिल में एक ट्रेंड क्या चलता है कि मतलब किसी ने किया तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं हम लोग। किसी ने अगर इंजीनियरिंग किया तो सभी इंजीनियरिंग करने में लग जाते हैं, किसी ने डॉक्टरी किया तो डॉक्टर के, किसी ने कुछ किया तो उसी के पीछे लगते हैं। और इन्हीं कारणों से हमारे पेरेंट्स को और हम सबको ये पता ना होने की वजह से और बच्चे को भी ना पता होने की वजह से फिर बच्चे जो है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका स्किल है, उसको छोड़ के कुछ और ऐसा करने लग जाते हैं जो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, उसका स्किल भी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो फेल होगा, फेल होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि जो स्कूल में जब बच्चे भेजते हैं, मैथ सीखते हैं, साइंस, इंग्लिश वगैरह सीखते हैं, लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, इसके साथ साथ हमें स्कूल में भी हो और अदरवाइज़ ख़ासकर ये विंटर के जो 2-3 महीने वो हमारे पास वाकई में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस तरह के 2-3 महीने छुट्टियाँ कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता।
एक हमारा लद्दाख है जहाँ पे 2-3 महीने का पूरा हमारे पास टाइम रहता है। तो इस 2-3 महीने को हम सब मिल के इस तरह से हमें इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, जिसमें जो पूरे साल जो बच्चे स्कूल में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कूल में भी वही पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत सारी ट्यूशन फीस दे के हम भेजते हैं। तो सर्दियों का ये 2-3 महीने का टाइम ऐसा एक वंडरफुल हमारे अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। करियर गाइडेंस का हो, अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग का हो, या वो सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम स्कूल में चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसका सिलेबस और एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने क्या देखा पिछले 15 साल से स्कूल का मैं प्रिंसिपल रहते हुए, जो हमारे बच्चे जो है सक्सेसफुल ना होने का वन ऑफ द मेन रीज़न है हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर नहीं होते, हमारे पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो हमारे पेरेंट्स करते क्या हैं, अपने बच्चों के ऊपर फोर्सिबली जो अपने जो हमारे सपने उनको उनके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। हम क्या कहते हैं, देखो पड़ोसी वाला बच्चा जो है इंजीनियर बन गया, तू क्या कर रहा है, डॉक्टर बन गया, तुम क्या कर रहे हो। तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो उस बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, वो जानने की कोशिश ना पेरेंट्स करता है ना टीचर्स करते हैं। बस ज़बरदस्ती जो है हम लोग उनके ऊपर कुछ ना कुछ थोपते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमारे ज़्यादातर बच्चे फेलियर का शिकार होते हैं, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर ड्रग्स में चले जाते हैं, फिर जो है बच्चे जो है आजकल तो इतना सीरियस हो चुका है कि इवन सुसाइड केसेस निकलने आते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है कि हम जो है बच्चों को ना समझ के, बच्चों के क्या चाहते हैं, उसका क्या स्किल है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस अपने सपने को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। ये काम करो, इसमें पैसे ज़्यादा है, इसमें शोहरत है, ये है वो है। तो इसी चक्कर में हम बच्चे जो है हमारे ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं होते। तो मेरे जो 15 साल का जो एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, उससे मेरा तो यही कहना है सभी पेरेंट्स से और सभी से, टीचर्स से, कि हमें जो है अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। फिर जो है हमें उसको उसी हिसाब से सपोर्ट करने की ज़रूरत है, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, चाहे इस तरह का कोचिंग का अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके सपोर्ट करना हो, ताकि हमारे बच्चे भी ऑब्वियसली आने वाले टाइम में कहीं पे भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने की क्षमता है। और आगे भी मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, बस एक दो सवाल मैं पुट करूँगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम कंक्लूड करता हूँ। सर, जिस तरह आपने फरमाया कि पेरेंट्स और जनरल पब्लिक का थोड़ा बहुत आपको इस कोचिंग में सपोर्ट है, तो सिमिलरली फर्दर LHDC या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ऐसे चीज़ों के लिए सपोर्ट आप तक मिल रहा है कि नहीं? हमें सच तो कोई सपोर्ट नहीं है। हमारा ये जो है ख़ासकर आप लोगों को पता भी है, ये जो स्कूल जो है स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल पिछले कई सालों से चल रहा है, और ये जो है लमडोन सोशल वेलफेयर सोसाइटी करके हमारा एक NGO है, वो चलाते हैं। तो आज यहाँ पे अगर हमने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट कारगिल है इन टर्म्स ऑफ पैसिव सोलर और रैम्ड अर्थ बिल्डिंग्स, जो अभी हमारे साइंस लैब वगैरह, क्लासरूम वगैरह, हॉस्टल वगैरह है, वो सब हमने अपने ही मेहनत पे फंड रेस करके हमने ये सब बनाया है। तो एज सच इस इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट की तरफ से या UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है इस स्कूल को रिकॉग्निशन देने में या एफिलिएशन देने में, इन सब में हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। इसके अलावा भी हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो काउंसलर्स हैं, चाहे वो हमारे BDCs हैं, PRI मेंबर्स, जितने भी हैं, उन्होंने जब भी हमें यहाँ पे चाहे ज़रूरत पड़ी तो हमेशा सपोर्ट की है। और तो मेरा मानना भी है, मैंने पहले कई बार कह चुका है कि हमें लद्दाख में भी, और जो है हमें अगर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, विच इज़ वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ आवर सोसाइटी, तो उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को हाथों में हाथ रख के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें पता है पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में और लद्दाख में भी प्राइवेट स्कूल्स का जो है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मेजर रोल है बच्चों को एजुकेशन देने में। तो हमें जो है साथ साथ चल के एक दूसरे का मदद करते हुए हमें चलने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में जो है लद्दाख लेक डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों जो है एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स। और आज अभी CBSE में भी सारे स्कूल कन्वर्ट हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उससे भी काफ़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा। तो इसके साथ साथ मेरा मानना ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स को भी अपना जो है सारी चीज़ें
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर कोई कमी पेशी हो, ताकि हम अपने बच्चों को जो है रियल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। बस लास्ट सवाल होगा सर चलते चलते स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल जो है सर काफ़ी लाइमलाइट में रहा है, चाहे एजुकेशन में हो, रिज़ल्ट में हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो, या साथ ही साथ बाकी कल्चरल प्रोग्राम्स में हो। उसके अलावा अगर एज ए प्रिंसिपल आप और कुछ अचीवमेंट्स स्कूल के अगर शेयर करना चाहते हो हमारे व्यूअर्स तक, आखिरी सवाल होगा। जी, स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल जो है इसको इस्टेब्लिश किए हुए लगभग 25 से भी ज़्यादा साल हुए। ठीक है, ये पहले जो है एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था हमारे मूलबेग चंबा से, इसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे बहुत पुराने बिल्डिंग्स में कई साल तक चला। पहले प्राइमरी स्कूल था, इसके बाद मिडिल स्कूल बना, इसके बाद 2001 में पहली बार हाई स्कूल बना। तो हाई स्कूल बनने के बाद 2001 से लेकर 2008 तक भी ये स्कूल काफ़ी चला और इस स्कूल में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है अच्छे पोस्ट पे, अच्छे फील्ड में निकले हुए हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी इसी स्कूल से निकला हुआ बहुत टाइम्स। इवन जम्मू कश्मीर यूटी से का जो टॉपर था क्लास 12 में, वो भी हमारे स्कूल से था। और इसके अलावा भी हमारे बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, यूटी लेवल पे हो, और बहुत सारे कंपटीशंस में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और एजुकेशन के उसमें भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मेरा एज सच प्रिंसिपल के रोल में 2008 से यहाँ पे एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। तो इसी पिछले बीते हुए 10-15 सालों में मैंने जो है, क्योंकि एजुकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, जहाँ पे भी हो, हमें सब ने जो है अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई भी हो, इवन गवर्नमेंट, क्योंकि एजुकेशन इज़ द बेस ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो उस हिसाब से 2008 से लेकर मैंने इस स्कूल को जो है बहुत ज़्यादा विद द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी एंड द पेरेंट्स, हमने बहुत ज़्यादा इसमें किया, ख़ासकर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। अच्छे टीचर्स हमने रिक्रूट किए हैं और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ। और मैं शुरू में जब यहाँ आया था तो मेरा यही मानना था कि ख़ासकर गाँव से हमारे बच्चे, ख़ासकर छोटे बच्चे क्लास 10 तक, नर्सरी से लेकर या क्लास 1 से लेकर 10 तक जो है बच्चे बिल्कुल हमें बाहर नहीं भेजना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने गांव में रखना चाहिए, ताकि वो अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहे, अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ा रहे, अपने पेरेंट्स का मदद करे और साथ के साथ जो है अपने गांव में ही वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो इस विज़न से हमने काम किया था और आज मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आज हम इस तरह के गाँव में जो है, जो शहर में जो एजुकेशन मिलता है वही क्वालिटी एजुकेशन हम गाँव में ही दे पा रहे हैं। In terms of infrastructure, we have one of the best infrastructure of school in district, as well as quality of education, best teachers and management and all that. तो मेरे ख्याल से ये वाकई में ज़रूरत है और हमें हम सबको मिल करके जो है एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो सेवांग नुर्बू साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रिंसिपल है स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल के, और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी वजाहत की, एक बेहतरीन इनिशिएटिव उन्होंने विंटर्स के लिए कोचिंग हमारे इलाके के बच्चों को, जिसमें शरगोल से लेकर तकरीबन वखा मुलबेग तक के बच्चों के लिए एक इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर भी यहाँ इन्होंने सेटअप कर रखी है विंटर के लिए। कोशिश की थी अपनी तरफ से बराबर तस्वीरें, विजुअल्स मुलबेग से आज आप दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। खतिलता के साथ साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, जुले। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.